Hello students, this is Ejas's Maths Academy and today we are going to continue with our lecture on Science 1 chapter number 2 periodic classification of elements. It is our second lecture on that chapter. Let us study the first thing. The first person to classify the elements was Wolfgang Dobereiner, a scientist from Germany. He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. The first person to classify the elements was Dobereiner. Okay, this person Dobereiner. He was a scientist from Germany. His name was Wolfgang. Name is not necessary. Let us first study what atomic mass means. Atomic mass means the mass of atom. In gravitation, we have already studied what mass is. Mass is the material contained in an object. So, mass means what should I say? वजन नहीं बोल सकते. Mass and weight are two different things. Let us see atomic mass. Atomic mass means atom's mass, and atom's mass is the total mass of protons and neutrons, because the mass of electrons is negligible. That's why atomic mass is defined as atomic mass is defined as the total. You have already studied this in the 9th standard, but still we are studying it for revision. It is defined as the total mass of protons and neutrons in an atom. And why don't we measure the mass of electrons? Because the mass of electrons is negligible. The mass of electrons is negligible. I am not writing its value. Shall I write? No, it's not needed. I know the mass of electron, I know the mass of protons and neutrons also, I know their exact values, but it is not necessary here, that's why I am not writing. Atomic mass means atom's mass, the mass of an atom. And how many things basically are present in an atom? Protons, neutrons and electrons. We are not talking about higher concepts. In higher classes, you will study that inside the nucleus of an atom, there are pions, kaons, bosons, leptons, hadrons, color, flavor. There are many other things. Pi positive meson, pi negative meson, pi naught, pi zero meson. There are various things inside the nucleus. But up to the 10th standard, we have to remember only one thing, that an atom is made up of 3 subatomic particles. And these 3 subatomic particles are proton, neutron and electron. So atom's mass, atomic mass is the mass of atom, and it should be the mass of protons, neutrons and electrons. Because there are 3 things in the atom, it should be the mass of these 3 things. But mass of electrons is negligible. That's why we consider only the mass of protons and neutrons. So the total mass of protons and neutrons is called atomic mass. How do we write atomic mass? If this is a sodium atom and we have to write its atomic mass, we write the atomic mass here. On the left hand side corner top corner, atomic mass of sodium is 23. Why 23? Because in sodium there are 11 protons. In sodium there are 11 protons and there are 12 neutrons. And mass of one proton is taken to be 1 unit. And mass of one neutron is also taken to be 1 unit. Now that unit is called AMU, atomic mass unit. What is AMU? Aligarh Muslim University? No, it is atomic mass unit. Atomic mass unit. See students, what is atomic mass? The total mass of protons and neutrons in an atom is called atomic mass. Okay. The mass of electrons is negligible, hence it is not considered. Hence it is, shall I write it here? Hence it is not considered.
Okay. For example, sodium has atomic mass 23. Why has it atomic mass 23? Because there are 11 protons and mass of one proton is 1 unit. So mass of 11 protons will be 11 units, and there are 12 neutrons. So mass of 12 neutrons will be 12 units, because mass of 1 neutron is 1 unit. So 12 neutrons will be 12 units. So 11 unit plus 12 unit will be 23 units. Understood? Don't ask me about the atomic mass of chlorine. Otherwise you will say, sir, protons and neutrons cannot be in fraction. You are right. Protons and neutrons cannot be in 0.5. Okay, but still it has atomic mass 35.5. I know the reason. It's all about relative abundance and their mean value, but we don't have to deal with it because it is not in our syllabus. So I hope you understood what atomic mass is. In chapter number 1 in science 2 also, there we saw carbon has 2 isotopes. Carbon has at least 2 isotopes, and one carbon has atomic mass carbon 12. It has atomic mass 12, and one carbon has atomic mass 14. This is heavy carbon. This is light carbon. And why are there two different atomic masses? Because this carbon has 6 protons plus 6 neutrons, and this carbon has 6 protons plus 8 neutrons. That's why this is heavy carbon. This is heavy carbon, and this heavy carbon was radioactive also, we studied. And this is light carbon. Both have different atomic masses. Okay, these are isotopes of each other. Let us not talk about isotopes also. I hope आपको ये कहानी समझ गई होगी. एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. चलो, लेट्स कम टू बिजनेस एंड हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फॉर आइदर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स. ये पहले बोर्ड एग्जाम में इससे पहले आ चुका है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डोब्राइनर्स ट्रायड्स. डोब्राइनर के ट्रायड्स के बारे में समझाइए. तो देखो, डोब्राइनर ने क्या किया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. आंसर क्या लिखेंगे? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझता है क्या आपको? चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज इक्वल टाइम के बाद रिपीट होती है उसको पीरियोडिक बोलते हैं. जैसे स्कूल में हर 35 मिनट्स के बाद बेल बजती है, तो हम बहुत से लोग बोलते हैं स्कूल में फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया. जो चीज इक्वल टाइम के बाद रिपीट होती है उसको पीरियोडिक बोलते हैं. जो चीज उतने ही समय के बाद फिर से रिपीट होती है, बार बार उतने ही समय के बाद रिपीट होती है, उसको पीरियोडिक बोलते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो चीज एक जैसी है, सिमिलर है, उनको अलग ग्रुप में रखना, और जो चीज डिफरेंट है, थोड़ी अलग दिखती है, उनको अलग ग्रुप में रखना. जैसे आप मॉल में जाते हो खरीदने के लिए कुछ, तो मॉल में क्या होता है? नहाने के साबुन का डिपार्टमेंट अलग होता है, कपड़े धोने के साबुन का डिपार्टमेंट अलग होता है, कपड़े खरीदने का डिपार्टमेंट अलग होता है ना. और किचन वेयर्स जो होते हैं, घरेलू किचन की चीजों का डिपार्टमेंट अलग होता है. तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अलग अलग अरेंज करके रखते हैं. उसी तरह लाइब्रेरी में बुक्स भी, पूरी फिजिक्स की बुक्स एक जगह अरेंज करके रखते हैं, पूरी केमिस्ट्री की बुक्स अलग अरेंज करके रखते हैं, बायो की पूरी बुक्स अलग अरेंज करके रखते हैं, मैथ्स की पूरी बुक्स अलग अरेंज करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बुक्स वो अलग अलग अरेंज करके रखते हैं. और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि ढूंढने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और स्टडी करने में भी आसानी होती है. सो क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ थिंग्स on the basis of similarities and differences. Classification का definition कोई पूछता नहीं है वैसे. Classification means division, putting things into different groups. Classification का definition हम ऐसा बोल सकते हैं, putting things into different groups on the basis of similarities and differences. तो ये उसका definition है, एग्जाम में कभी नहीं आता. अब सुनो, डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स. इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट क्या है कि डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कहता है? Dobriner was the first person to arrange the elements into different he was the first person to arrange the elements. He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. Dobriner ने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता किए. हालांकि उस समय एटॉमिक मास क्या होता है उसकी भी पूरी अच्छी स्टडी नहीं हुई थी, लेकिन जितने एलिमेंट्स उनको मालूम थे, डोब्राइनर ने क्या किया? उतने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखे. ये जैसे
सो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9. व्हाट इज इट? Li लिथियम, क्योंकि लिथोस्फीयर में मिलता है, पत्थर में मिलता है, इसलिए उसको लिथियम बोलते हैं. अब डे टू डे लाइफ में आज हम लिथियम कहाँ यूज करते हैं? तो हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें लिथियम यूज किया जाता है. बैटरी में बहुत ज्यादा यूज होता है. सोडियम सबको मालूम है, सोडियम को पानी में डालो तो आग की लपट निकलती है, फ्लेम्स ऑफ फायर कम आउट, है ना. इफ यू पुट पीस ऑफ सोडियम इनटू इवन इनटू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी अगर सोडियम डाल दिया, माचिस की आग नहीं लगाए तो भी उससे आग की लपट निकलती है. उसका रीजन हम पढ़ेंगे बाद में जब आएगा केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में. तो सोडियम एंड के इज पोटेशियम. सोडियम का नाम पुराने जमाने में नेट्रियम था, NaTrium नेट्रियम, इसलिए Na लिखते हैं. और पोटेशियम के, पोटेशियम का नाम कैलियम था, KALIUM कैलियम, इसलिए उसका सिंबल K लिखते हैं, लेकिन उसका नाम पोटेशियम है. ये पोटेशियम और सोडियम बहुत खतरनाक एलिमेंट्स है, इनको पानी में डाल दो तो पानी में भी आग की लपट निकलती है. उसके पीछे रीजन है, वो हमको बाद में डिस्कस करना है, वो क्यों रीजन में पूछते हैं. तो अब सुनो, लिथियम का एटॉमिक मास बहुत कम है, सबसे कम है, सबसे कम यानी बहुत कम है. इन तीनों में तो सबसे कम है. लिथियम का कितना है 6.9. सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23. पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39.1. सबसे कम एटॉमिक मास इन तीनों में, सबसे कम एटॉमिक मास, थोड़ा ज्यादा एटॉमिक मास और उससे भी थोड़ा ज्यादा एटॉमिक मास. बात समझ रहे हो? तो डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को कैसे सीक्वेंस में रखा, ऑर्डर यानी सीक्वेंस. तो डोब्राइनर अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना, सबसे पहली बात तो डोब्राइनर वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. ठीक है, डोब्राइनर वाज द फर्स्ट पर्सन, डोब्राइनर वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखने वाले, मतलब अलग अलग अरेंज करने वाले पहले व्यक्ति डोब्राइनर थे. नंबर 2, he arranged the elements, he arranged the known elements. known यानी उनको जितने एलिमेंट्स मालूम थे, उस समय ज्यादा केमिकल्स के बारे में जानकारी नहीं थी, उस समय ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. उनको हीलियम गैस है ये समझ, हीलियम गैस क्या होती है, नियॉन गैस, एर्गन गैस क्या होती है, वो समझता नहीं था. आपको समझता है ना? हाँ. He arranged the known elements into groups of 3, into groups of 3, groups of 3. यानी उन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया. दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3. एक एक तीन एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया. ईच ग्रुप वाज कॉल्ड अ ट्रायड. Each group was called a triad. और triad का मतलब क्या होता है? Having 3 elements. Tri यानी 3 elements. अपने संस्कृत में भी 3 बोलते हैं ना, त्रिमूर्ति, 3 यानी 3. So क्योंकि एक एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए हर ग्रुप का नाम था ट्रायड. ट्रायड 1, ट्रायड 2, ट्रायड 3. ओके, फिर क्या लिखेंगे? He arranged the elements. He arranged the elements in the increasing order. In the increasing order. और ऑर्डर को अपनी इसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस यानी पहले कम एटॉमिक मास वाला, फिर ज्यादा एटॉमिक मास वाला, फिर उससे भी ज्यादा एटॉमिक मास वाला. तो उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे रखे. पहले देखो कम एटॉमिक मास वाला 40.1, फिर सेकंड 88 उन्होंने लाया ये वैल्यू सॉल्व करके 88.7, फिर 137.3. यहाँ पर इन तीनों में देखो 35.3, 35.5, उससे बड़ी वैल्यू 81.2, उससे भी बड़ी वैल्यू 126.9. तो छोटी और बड़ी सबसे बड़ी, छोटी बड़ी सबसे बड़ी, छोटी बड़ी सबसे बड़ी. समझे? ऐसी वैल्यूज उन्होंने इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया था. अब मैं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, तो मैं ये मिटा देता हूँ. अगर आप नोट करना चाहते होंगे तो डेफिनेशन नोट कर लो. अगर आप नोट्स बना रहे, रिमेंबर वैसे तो मार्केट में ढेर सारे नोट्स मिलते हैं, है ना. नवनीत की डाइजेस्ट जो है वो टॉप स्कोरर, नवनीत टॉप स्कोरर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप, और वहां जाके लॉगिन करना, और उसमें लिखा रहता प्राइस 0 रुपीज.
और वहाँ एक ऑप्शन आता है BUY बाय, तो बाय कर लेना। मार्केट लिख के आता है नवनीत की एप्लीकेशन में, टॉप स्कोरर। वहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट्स की डाइजेस्ट की ई डाइजेस्ट यानी उसका PDF फ्री में डाइजेस्ट कर सकते, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हम वो एप्लीकेशन के थ्रू। तो वैसे आप में से बहुत से लोग के पास अब नवनीत डाइजेस्ट आ गई होगी, मार्केट खुल गई है, तो ये मैं मिटा देता हूँ। डाइजेस्ट से पढ़ना एक अच्छी बात है, नवनीत से पढ़ना हम लोग तो नवनीत रेकमेंड करते हैं, मैं तो नवनीत रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को साइंस के लिए। लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो रहते हैं वो जल्दी से याद आते हैं और याद रखने में आसानी होती है, तो ये हम मिटाते हैं। ठीक है, नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो ठीक है, आगे की कहानी सुनो। अब फिर क्या हुआ? He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. पहले कम एटॉमिक मास, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, कम ज्यादा ज्यादा, कम ज्यादा ज्यादा, है ना। फिर उसके बाद अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, और यही डोब्राइनर का लॉ ऑफ ट्रायड है, लॉ है ना, डोब्राइनर का, डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या है? ये लॉ का मीनिंग समझो क्या है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझा देता हूं। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses into groups of three, then in each triad the atomic mass of the middle element the atomic mass of the second element, shall I write second element or middle element? Middle would be good. The atomic mass of the middle element is nearly equal to the mean or average of the atomic masses of the other two elements of the triad, of the other two elements. ये लॉ है। अब इसका मीनिंग समझो, पहले मैं आपको समझा देता, फिर मैं लॉ आपको फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। दिस मे बी आस्क्ड फॉर 2 or 3 मार्क्स। एक एग्जांपल याद रख लेना, कोई भी एक एग्जांपल। तो कौन सा एग्जांपल याद रखोगे? ये वाला। जैसे मैं टेबल फिर से यहाँ बना रहा हूँ। सी दिस इज द टेबल, दिस इज वन ट्रायड, आई एम मेकिंग अ ट्रायड, दिस इज लिथियम, आई एम राइटिंग द फुल नेम so that it should be easier for you to remember. Lithium, this is sodium, and this is potassium. पोटेशियम को K से बताते हैं, सोडियम को Na से बताते हैं, हम लिथियम को Li से बताते हैं। यही वाला टेबल, ये वाला टेबल मैं वहां फिर से बना रहा हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? लिथियम का एटम भारी रहता है या हल्का रहता है? तो 6.9, इसका एटॉमिक मास है 6.9। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? तो 39.1, इसका एटॉमिक मास कितना है? 39.1। अगर हम गिनते हैं, पोटेशियम का एटम थोड़ा भारी होता है, ठीक है, एटम वगैरह सब समझते हैं ना आपको, वेरी गुड। तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीस थिंग्स इन द 9th स्टैंडर्ड। अब इन्होंने क्या कहा, इस एक ट्रायड में इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा, तो इसका एटॉमिक मास उनको ऑलरेडी मालूम था। फिर भी उन्होंने एक चीज क्या पता किया मालूम है? उनको ये ध्यान में आया कि अगर, अब देखो, if the elements are arranged in the increasing order, increasing sequence of their atomic masses, कम एटॉमिक मास, ज्यादा एटॉमिक मास और उससे ज्यादा एटॉमिक मास, ठीक है, इस तरह एरो ऐसा बना देंगे हम, समझो एरो ऐसा, कम लीस्ट वैल्यू, मोर वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अगर ऐसे
if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses into groups of 3, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है ये, तो देन इन ईच ट्रायड, ये एक ट्रायड में, हर ट्रायड में, ये एक ट्रायड है, इस हर एक ट्रायड में ऐसा ही होता है, और ये एक ट्रायड का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, बाकी ट्रायड्स के एग्जांपल्स आप समझ जाओगे। इन ईच ट्रायड क्या होता है, ये एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये जो मिडिल एलिमेंट है एटॉमिक मास इसका 23, जो सोडियम का मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, इट इज नियरली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लिखना एग्जाम में, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ, मीन अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज ऑफ द, और एवरेज किसका, एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास हमको पता करना है, तो लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। 2 से ही क्यों डिवाइड किया मैंने, 3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि लिथियम एक एलिमेंट है और पोटेशियम एक एलिमेंट है, कितने एलिमेंट को डिवाइड कर रहा मैं, 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस को डिवाइड कर रहा, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको कोई बोलता कि A, B एंड C है, इसका एवरेज निकालो, तो आप क्या लिखते हैं मालूम है मैथ्स में, A + B + C डिवाइडेड बाय 3। अगर कोई बोलता फाइंड द एवरेज ऑफ ABCD का एवरेज निकालो, तो ये मैथ्स का रूल है, कैसे फाइंड करते हैं, मीन A + B + C + D, कितने हो गए अब ये A B C D 4 हो गए, तो डिवाइडेड बाय 4, इसको बोलते हैं मीन निकालना, एवरेज निकालना। आई थिंक मैथ्स में आपको है मीन, मोड, मीडियन वगैरह शायद आया होगा आपको 9th में, और अगर नहीं आया होगा तो शायद 10th में होगा, लेकिन मैंने ये नाम सुना है, आप लोग कहीं तो भी पढ़ते हैं, ये मैथ्स में कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है। तो सी, लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। अब सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है हमको, तो इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। ठीक है, ऐसा पूरा लिख के बताओ क्या, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, और इज इक्वल टू होगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। दिस विल बी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na। अब एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फर्स्ट वाले का कितना है 6.9 प्लस थर्ड वाले का कितना है 39.1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका प्लस करो तो कितना होता है 6.9 प्लस 39.1, ये 9 और ये 1 यानी 10 हो जाता है, 40 हो जाता है और 46 हो जाता है। न्यूमरेटर विल बी 46 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी 23। ठीक है, ये उसका नियर अबाउट हमने वैल्यू ला लिया। ठीक, बुक ने भी हमको वही दिया है, करेक्ट। तो 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी यूनिट कुछ मत लिखो, बस याद रखो ऐसे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 23। अंडरस्टूड? ये है डोब्राइनर का लॉ ऑफ ट्रायड कि हर एक ट्रायड में पहले और तीसरे के एटॉमिक मासेस का सम एवरेज निकाला जाए तो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। और बहुत से स्टूडेंट ये लॉ बोलने में और एग्जाम में लिखने में गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मालूम है? सुनो, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses into triads, then the atomic mass of the second element, the atomic mass of the middle element is equal to the sum of first and third element. The sum of first and third element. The sum of first and third element, क्या element का sum करते हैं? No, it is equal to the sum of atomic masses of first and third elements. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम करें तो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल, सम नहीं एवरेज, अगर फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मीन निकाले, एवरेज निकाले, तो वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली बराबर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, ये यहाँ पर आ जाते हैं, सी हियर, ये दूसरा ट्रायड है, ये ट्रायड नंबर 1, ये ट्रायड नंबर 2, कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, Sr यानी स्ट्रोंशियम, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है। इसके वजह से रशिया में एक बार ब्लास्ट हो गया था,
चेरनोबिल, रशिया का एक सिटी है जिसका नाम है चेरनोबिल, वहां पर ब्लास्ट हो गया था बहुत बड़ा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो पावर स्टेशन था, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां पर ब्लास्ट हो गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमको साइंस में आएगा, तो देयर वी विल सी। ये एलिमेंट का नाम क्या है? STRONTIUM, स्ट्रोंशियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नाम लिख के देना पड़ेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, STRONTIUM, स्ट्रोंशियम, and this third is barium. Calcium, strontium, barium. What is the atomic mass of calcium? 40.1. What is the atomic mass of strontium? 88.7. ठीक है. What is the atomic mass of barium? 137.3. ये तीनों का atomic masses हो गए. Minimum atomic mass, उससे ज्यादा atomic mass, और ये इन तीनों में सबसे ज्यादा atomic mass. तो atomic masses का कैसा हो रहा है? ये increasing order हो रहा है. Less atomic mass, more atomic mass, and maximum atomic mass. So atomic masses are increasing. Understood? Now see one more thing. इनको बड़ी खुशी हुई, बोले मैंने क्या पता, क्या नई चीज पता कर लिया। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालो तो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर आता है नियरली। Sorry. See what he did. Calcium atomic. If you want to find out the atomic mass of strontium, then we will do one thing. We will calculate the average mean, arithmetic mean of the atomic masses of calcium and barium. फर्स्ट एंड थर्ड वाले के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे तो वो नियरली इक्वल आएगा किसके? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के बराबर आएगा। जैसे देखो इन्होंने सॉल्व किया स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1, बेरियम का एटॉमिक मास 137.3 डिवाइडेड बाय 2। मैंने पहले से कर लिया क्योंकि मैं आपके सामने मैथ्स करते बैठता, मेरा मैथ्स गलत हो जाता तो मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने पहले से देख के लिख के रख दिया। तो 88.7 इसका एटॉमिक मास कितना है? 88.7। अगर ऐसी मेथड से किया जाए और इन्होंने ये मेथड से किया, मान लो अगर स्ट्रोंशियम नहीं भी रहता तो उसका एटॉमिक मास बता सकते थे हम कितना होगा। पहले तीसरे का एटॉमिक मतलब हम नहीं भी मालूम होता तो, लेकिन उसको अरेंज कैसे करते थे फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन्होंने एक चीज क्या किया, बोले पहले वाले का और तीसरे वाले का एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाला जाए तो सेकंड वाले का एटॉमिक मास के नियरली इक्वल आता। वहां तो एग्जैक्टली इक्वल दिख रहा है आपको, लेकिन हर बार एग्जैक्टली नहीं आता, इसलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोला। तो यहाँ देखो इनके हिसाब से अगर निकाला जाए, डोब्राइन और चचर के हिसाब से, तो कितना आता है? 88.7। लेकिन सच में स्ट्रोंशियम के एटम को गिन के उसका एटॉमिक मास निकाला जाए तो कितना आया? आता है 87.6। तो एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है स्ट्रोंशियम का? 87.6। और ये मेथड से ये फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज निकाला जाए तो वो सेकंड के एटॉमिक मास के, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज निकाला जाए तो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल आता है। तो ये नियरली इक्वल क्यों आ रहा है? नियरली इक्वल आने के नियरली इक्वल आने का मतलब ये है कि ये मेथड से किए तो 88.7 आ रहा है, लेकिन है कितना? 87.6। अब 88.7 और 87.6 में कितने का डिफरेंस है? थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। इसका मतलब नियरली अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मासेस के एवरेज किए तो सेकंड का एटॉमिक मास के इक्वल आता है। और एक ट्रायड, एग्जाम में हमको टोटल कितने ट्रायड्स याद रखना है हमको? एक, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ली नाक, नाक, ली नाक, किसी के नाक पकड़ के ली खींची याद रखने के लिए। सी दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल इन द एंटायर वर्ल्ड पीरियोडिक टेबल which is found in the liquid state at room temperature। चलो अभी उसके झंझट में नहीं पड़ते। क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। अब आपको मैंने ये बता दिया कि मुझसे अभी मत पूछो, ये वो समय नहीं है क्या पूछोगे इसका पॉइंट में क्यों मास आया, क्या 5.5 प्रोटॉन है, उसमें 12.5 प्रोटॉन है, 18.5 प्रोटॉन है, 18.5 न्यूट्रॉन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एवरेज अबंडेंस के बेसिस पर ऐसा निकाले तो एवरेज वैल्यू पॉइंट में आती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं छेड़ रहे, ठीक है। अदरवाइज ये मैं आपको समझा दिया रहता। तो सी क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा है 81.2 and the atomic mass of iodine is even greater, it's 126.9. In this triad elements are arranged in the increasing order of their atomic masses: minimum atomic mass, moderate atomic mass
maximum atomic mass. Now what we have to do? What does Dobrainer's law says? It says, what does it say? It says if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the average or arithmetic mean of the atomic masses of first and third elements is, their average is nearly equal to the atomic mass of the middle element. This is chlorine and this element is bromine, bromine. This is your friend chlorine, which was used in the First World War as a weapon. Chlorine is a poisonous gas. It is used in bleaching powder also. It is present in bleaching powder also, and it kills germs and pathogens. This is iodine. If we do not take sufficient iodine, we may suffer from goiter. थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगा उससे. तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन एंड आयोडीन के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाला जाए तो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल आता है. ये वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज निकालने पर कितना आता है? 81.2. और रियल देखा जाए, एक्चुअली ब्रोमीन को बुलाया जाए और उसको बोले बता तेरा एटॉमिक मास कितना है, तो ब्रोमीन को गिनेंगे तो उसका एटॉमिक मास आता है 79.2. और ये मेथड से करें तो कितना आता है? 81.2. तो ये जो है डोब्राइनर चचा ये बहुत खुश हो गए थे. बोले अरे मैंने क्या झकास चीज ढूंढ के निकाला. बोले फर्स्ट एंड थर्ड वाले के एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालो. बोले एकदम तुमको सेकंड वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा. बोले नियरली इक्वल टू. तो ऐसा उन्होंने बोले. लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे दूसरे ट्रायड्स बना कर देखे उन्होंने, और फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालते थे, सेकंड के इक्वल नहीं आता था. फिर और फर्स्ट एंड थर्ड दूसरा ट्रायड बनाते थे, तीसरा ट्रायड, पहला, दूसरा, तीसरा. एक बुक में तो ये लिखा है कि डोब्राइनर ने सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बना, 3 ट्रायड्स मतलब डोब्राइनर ने बहुत सारे ट्रायड्स बनाए लेकिन 3 ट्रायड्स उनके सक्सेसफुल थे, बाकी सब गलत हो गए. ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि दूसरी बुक्स में भी और मैंने बहुत सारा नहीं पढ़ा है. तो डोब्राइनर का क्या कहना था, उनके ट्रायड का जो लॉ था वो कुछ ही एलिमेंट्स में कुछ ही ट्रायड्स उनके सक्सेसफुल हुए. बाद में उन्होंने दूसरे जो बहुत सारे ट्रायड्स बनाए उसमें फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली भी इक्वल नहीं आ रहा था. इसलिए उनका ट्रायड का लॉ फेल हो गया और डोब्राइनर चचा गलत हो गए. अब उनके बाद कौन आए? तो इंग्लैंड से. ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. इनके बाद आए न्यूलैंड्स अंकल. तो न्यूलैंड्स अंकल कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे, न्यूलैंड्स. और उन्होंने सारे गामा पध निसा के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनके लॉ का नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. OCTAVES. ऑक्टेव्स. ऑक्टा यानी 8 होता है. ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं ना, ऑक्टेव्स. सारे गामा में भी देखो पहला क्या होता है? सारे गम पध नि सा 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 सा. पहला भी सा और 8वां भी सा. देखो पहला क्या है? फर्स्ट सा 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 सा. पहला सा है. सारे गम पध नि सा. पहला भी सा और 8वां भी सा. उन्होंने क्या किया था? उनकी कहानी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सारे गामा को भी भूल जाओ. बस डोब्राइनर अंकल ने क्या बोले, डोब्राइनर चाचा की बातें आज याद रखो. फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स अंकल ने क्या बोले. ठीक है, चलो, हैव अ नाइस टाइम.